Welcome students. In today's class we are going to solve some problems related to the triangle law of vector addition. So the first one is in the Cartesian coordinate system, the coordinates of the 2 points P and Q are 2, 4, 4 and -2, -3, 7 respectively. Find vector PQ and its magnitude. So basically in this problem here we have to use the triangle law of vector addition. So let's consider this is vector OP and another vector is there, that is vector PQ. So we have to join these two vectors, so that will give us the resultant vector. So here according to the triangle law of vector addition we can write vector OQ is equal to vector OP plus vector PQ. Basically here we have to find the vector PQ. So you can write here vector PQ is equal to vector OQ minus vector OP. So the first they have given us 2, 4, 4. The coordinates are 2, 4, 4. So that is 2, 4, 4. So these coordinates you have to use for OP. So we can write vector OP is equal to 2i plus 4j plus 4k. And in similar case for OQ, so the coordinates for Q are -2, -3 and 7. So you can write vector OQ is equal to -2i minus 3j plus 7k. So now just put the values. First we have to write OQ. So I will write -2i minus 3j plus 7k minus the value for the OP, that is 2i plus 4j plus 4k, and here is vector PQ. Okay, so there is minus sign, therefore the sign will be changed here. It will be -2i minus 3j plus 7k minus 2i minus 4j minus 4k is equal to vector PQ. Now just need to add the I value, jj value and kk value. So -2i minus 2i minus 4i minus 3j minus 4j, that is minus 7j plus 7k minus 4k, that is plus 3k. So our answer will be minus 4i minus 7j plus 3k. So this is our answer, minus 4i minus 7j plus 3k. And in this problem we have to basically find वेक्टर पी क्यू. अभी हमने वेक्टर पी क्यू फाइंड किया है, अभी हमें मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे फाइंड करना है. सो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, सो यू कैन राइट हियर इन मॉड साइन वेक्टर पी क्यू. सो जब हम मॉड साइन में एक आधा वेक्टर लिखते हैं तो ये होगा उसका मैग्नीट्यूड. So for this you can write -4 square plus -7 square plus 3 square. So now just take the square, it will be 16 plus 49 plus 9. So now add these values, so that will be square root of 74. तो इस तरह से हमने ये जो प्रॉब्लम था इसमें पहले वेक्टर पी क्यू का वैल्यू फाइंड किया है. ये दो कंपोनेंट हमें दिए थे, वेक्टर ओ पी एंड वेक्टर ओ क्यू. ये दो कंपोनेंट का यूज करके हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे यूज किया है और जो वेक्टर पी क्यू है उसका वैल्यू फाइंड किया है. जब हम वेक्टर पी क्यू फाइंड करते हैं उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू फाइंड करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वी हैव टू राइट इट इन मॉड साइन, that is mod of
vector PQ. So in this way we have the magnitude also. Let's see next problem. Find the vector that should be added to the resultant of 2i minus 5j plus 3k and 4i plus 7j minus 4k to give a unit vector along x-axis. Find the vector that should be added to the resultant of. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो वेक्टर हमें बेसिकली दिए हैं उनका पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे. ओके, यानी हमें एडिशन करना होगा यहाँ पे. ओके, so first see here in the first part of this problem, find the vector that should be added to the resultant of. तो हमें इस तरह का वेक्टर फाइंड करना है जिसे हम ऐड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर में, तब हमें यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा. सो लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. वी विल सॉल्व इट बाय स्टेप. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे वेक्टर आर, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ये होगा वेक्टर ए और ये होगा वेक्टर बी. तो पहले हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे. ओके, सो वी हैव टू ऐड दिस टू वेक्टर. सो पहले हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे. 2i माइनस 5j प्लस 3k प्लस 4i प्लस 7j माइनस 4k. जब आप इनका एडिशन करते हैं तब हम यहाँ देख सकते हैं ये 2i है और ये 4i है. इन दोनों का एडिशन करना होगा तो ये होगा 6i. अभी ये माइनस 5j है प्लस 7j है. इनका जब एडिशन करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4k, दैट विल बी माइनस k. सो दिस इज वेक्टर आर. तो इस तरह से हमें क्या मिला है, वेक्टर आर मिला है. 6i प्लस 2j माइनस k. लेकिन हमें पूछा क्या है, फाइंड द वेक्टर दैट शुड बी एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ. ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला है, लेकिन इस रिजल्टेंट वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा दैट विल गिव्स अस यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस. तो हम यहाँ कह सकते हैं, कंसीडर वेक्टर C be the vector such that vector R plus vector C is equal to I. तो यहाँ पे हम करेंगे वेक्टर C का वैल्यू फाइंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. सो आप अभी मुझे ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमने I क्यों लिया है, क्योंकि हमें पूछा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. फॉर एक्स एक्सिस वी हैव टू टेक I. जब y एक्सिस पूछा होता तो हम j ले सकते थे. k एक्सिस पूछा होता, z एक्सिस पूछा होता तो हम क्या ले सकते थे, k लिख सकते थे. इस प्रॉब्लम में हमें x एक्सिस दिया है तो इसलिए हमने I यहाँ पे इक्वल में लिया है. ओके, सो आई विल इरेज दिस. तो अभी हमें बेसिकली वेक्टर C का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ पे पहले हम वेक्टर R का वैल्यू पुट करेंगे. वो है 6i प्लस 2j माइनस k प्लस वेक्टर C यहाँ पे I. तो वेक्टर C इज इक्वल टू
ये सब वैल्यू इधर जाएंगे तो यहाँ पे इनके साइन यहाँ पे क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। ओके, तो जब यहाँ पे साइन चेंज होंगे तो पहले हम इस ब्रैकेट को ही उधर लेंगे। तो बेसिकली i माइनस 6i प्लस 2j माइनस के, तो आप इसे लिख सकते हैं -6i माइनस 2j प्लस के। i माइनस 6i माइनस 5i माइनस 2j प्लस के, तो ये हमें मिलेगा आंसर -5i माइनस 2j प्लस के। ओके, तो इस तरह से हमें ये वेक्टर का है जो यहाँ पे एडिशन मिलेगा। Now see next one. So in our third problem, vector P is equal to I minus 2j plus 2k and vector Q is equal to 3i minus j plus k. Find the vector which when added, find the vector which when added to vector P minus vector Q will give a unit vector along z-axis. So here we have to write फर्स्ट वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। लास्ट जो प्रॉब्लम था उस तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लिखेंगे I माइनस 2j प्लस 2k माइनस 3i माइनस j प्लस k। ओके, सो यू कैन राइट I माइनस 2j प्लस 2k माइनस 3i प्लस j माइनस k। ये माइनस साइन के वजह से सब यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I minus 3i that is minus 2i minus 2j plus j that is minus j plus 2k minus k that is plus k. See here I minus 3i minus 2i minus 2j plus j that is minus j plus 2k minus k that is plus k. तो अभी ये जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन मिली है वो है वेक्टर p माइनस वेक्टर q की। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में पूछा है फाइंड द वेक्टर विच व्हेन एडेड, तो हमें इस तरह का वेक्टर फाइंड करना है जो हम ऐड करेंगे किसमें, वेक्टर p माइनस वेक्टर q के वैल्यू में। विल गिव अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस माइनस 2i माइनस j प्लस k। ओके, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर p माइनस वेक्टर q प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमने k क्यू लिखा है। सी हियर हमें दिया है z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस वी हैव टू टेक k कॉम्पोनेंट। x एक्सिस होता तो हम i लेते, y एक्सिस होता तो हम j लेते, z एक्सिस है तो इसलिए हमें k लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास वेक्टर p माइनस वेक्टर q है तो इसमें हमें उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, जो वेक्टर c का वैल्यू हमें फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पे, तो जो वेक्टर p माइनस वेक्टर q का वैल्यू है माइनस 2i माइनस जे प्लस के, माइनस 2i माइनस जे प्लस के, माइनस 2i माइनस जे प्लस के प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू के। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ आने के बाद ये हो जाएगी माइनस 2i माइनस जे प्लस के। सो हियर के माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2i, यहाँ पे ये हो गया प्लस जे
ये होगा माइनस के, ये प्लस के माइनस के कैंसल, फाइनली 2i प्लस जे। तो ये हमें मिला है वेक्टर सी, 2i प्लस जे। ओके, 2i प्लस जे, सो दिस इज वेक्टर सी।